As they say, history is written by the victors, and here is the history so far. 26 November 2005 went down in history as the day when Sohrabuddin Anwar Hussain Sheikh was killed in a staged police encounter. It was alleged that Sohrabuddin was a Lashkar operative working in close association with Pakistan's intelligence agency ISI, and that he was planning to take down a high-profile minister in Gujarat government. The Gujarat police also came under the scanner for eliminating Sohrabuddin's wife Kosarbi around a year after the event. A close aide of Sohrabuddin, Tulsiram Prajapati, also met a similar fate in yet another encounter. Turns out, Tulsiram was the key witness in Sohrabuddin's encounter case. Senior officers of Gujarat police, purportedly acting at the behest of Gujarat Junior Home Minister Amit Shah, came under the radar, leading to the arrest of Gujarat Junior Home Minister. With all roads leading to Gujarat Chief Minister Narendra Modi, the Supreme Court ordered a CBI investigation into the encounter cases. In the course of events that followed, Amit Shah was released on bail. This entire drama was played out at the cost of 3 lives. The course of the drama has changed the lives of the families of Sohrabuddin and Tulsiram forever. This investigation by freelance reporter Pushp Sharma reveals how the uniformed officers of Gujarat police are hand in glove with the senior ministers of Gujarat government, and together they run an extortion racket. The question we are asking is, will there be justice? Will crime be punished in the Indian courts? The Supreme Court ordered an investigation in the matter, but the perpetrators of the crime are bent on subverting the law. The senior most political leaders are now involved in an attempting to cover up evidence of crime. This investigation exposes the crime rampant in the political circuitry of Gujarat government. And now meet the protagonists of this crime thriller. They are setting the stage to kill the judiciary, to script a new future for the Indian democracy. This is Rajya Sabha Member of Parliament of Bharatiya Janata Party, Prakash Javadekar. And this is a Member of Parliament and National Secretary of Bharatiya Janata Party, Bhupendra Yadav. And the venue for this crime thriller is the MP residential quarter of Prakash Javadekar. They proceed to the dinner table for a conversation of a grave import. Brace yourself for a dinner diplomacy rarely witnessed on Indian television. मेरी पुष्पजी से बात हुई थी। समस्या ये है कि जैसे एक बार अगर वकालतनामा दे दिया जाता है तो उसके वकील हम हो गए। तो विषय इतना था कि जो अपना सारा प्रोजेक्ट तय हुआ था वो ये हुआ था कि वकालतनामा वो दे देगी, उसके वकील हम हो गए। तो अब इनके पास जो इंफॉर्मेशन है, गुजरात से इंफॉर्मेशन है कि उसने वापस से चेंज कर लिया। अच्छा, उसको फिर कोई मिला क्या? वही अहमदी वाले उन्होंने क्या किया? Clad in white inside the parliament, you are now watching these icons of our democracy masterminding a conspiracy inside the closed doors of this MP residence. The country's most infamous fake encounter case is going wrong, and the perpetrators of the crime are worried. After the Supreme Court ordered a CBI investigation, all evidence pointed to the former Junior Home Minister of Gujarat, Amit Shah. But now the stage is all set to dilute the evidence and subsequently kill the case to clear all charges against Amit Shah. These two senior members of the BJP are doing exactly that, hatching a plan to protect Amit Shah. The plan that was being deliberated was to get the complainant Narmada Prajapati, mother of the deceased Tulsiram Prajapati, to sign on blank Wakalatnamas. Wakalatnama is a legal document duly signed by a lawyer and his client that authorizes that lawyer to present a case on behalf of his client. The grand conspiracy is to plant their own lawyer to represent Narmada Prajapati such that they could weaken the case against their own boss Amit Shah. Unaware of the hidden camera, these BJP members continue to spill the beans. उन्होंने उसको कहा कि आप साइन कर दो, तो मैंने बताया ही था, मैं तो सबको बगैर बताया एकदम से इमीडिएट कॉल लेकर के चला गया था।
लेकिन क्या होता है कि मनोज जी को मिलो तो कहते हैं भाई पहले आप उनसे बात कर लो। यानी क्या करना था और क्या नहीं हुआ, ये क्यों हो, वो पलट क्यों गई, वो नहीं नहीं उसको गुस्सा करके डरा धमका करके तो साइन करा लेते हैं, उसे पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कितना इन चीजों क्या है। नहीं तो है, लेकिन विषय ये है कुछ भी अपना विषय इसमें बाबा अरे और एक अपन दावे में क्लियरिटी यही थी ना, इसको पहले साधन वगैरह इसलिए हुआ है कि अब हम उसके वकील है, अपने को उसको स्ट्रिक्ट करना है, बाकी कुछ भी हो, बाकी अगर उसको लोकल प्रोटेक्शन दिए तो उसकी बात करते थे। लोकल प्रोटेक्शन में से अगर प्रकाश जी हमने भी जाए तो मैं मोहन यादव से बात करता हूँ, उज्जैन में रहने वाला है। कौन मोहन यादव उज्जैन में रहने वाला है, विद्यार्थी का राष्ट्रीय मंत्री था, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का चेयरमैन है और उज्जैन का प्रमुख भाजपा का नेता है। फिर हम लोगों से नौ में बात करते This is no listless dinner table conversation. This is a political scam of the highest imaginable order. These senior BJP MPs had already facilitated a blank wakalatnama from Narmada Prajapati in the Tulsiram fake encounter case. Take a look at these visuals. Captured on the hidden camera by reporter Pushp Sharma, Narmada Prajapati is authorizing a lawyer to represent her case. As you will see later, this lawyer is appointed by the same team which is working on a project to save Amit Shah. The reporter first met Narmada Prajapati in June 2011 for research for a book he was writing on fake encounters in Gujarat. He was also a non-investigative journalist, having served a stint in news outfits such as Tehelka, Headlines Today and India News. He kept himself abreast of the inside news in political circles and he was thus known to several senior political leaders. His association with Saraswati Shishu Mandir also earned him the added advantage of familiarity with the Sangh Parivar. His close association with Narmada Prajapati came into the knowledge of Prakash Javadekar. Javadekar sought the reporter's help in getting an introduction to Narmada Prajapati, citing the reason as facilitating her compensation in Tulsiram Prajapati fake encounter case from Gujarat government. In one of his subsequent meetings with Narmada Prajapati, he met a young lawyer who was appointed to collect her signature on a wakalatnama for organizing her compensation. Suspecting foul play, the reporter triggered his spy cam. Many months later, he came to know that no one had approached the Prajapati family after getting the wakalatnama signed. Now totally convinced of foul play, he set out an undercover investigation. In order to expose the criminality of these senior BJP members, the reporter planted a fictitious story in Ujjain. He spread the news that Narmada Prajapati has signed another wakalatnama for Sohrabuddin Sheikh's brother Rubabuddin. This was pure fiction planted by the reporter, but this news travelled like wildfire and the panic spread to New Delhi. These senior BJP leaders are now privy to the same news. This is tantamount to the fate of the case going to the rival camp's lawyer. Their panic and desperation was so intense that they were ready to invite a freelance investigative journalist to dinner at their MP quarters and seek his help. What they were not aware of, however, was that journalist was also the undercover reporter capturing all their actions on a hidden camera. This is the panic surrounding this dinner meeting. The BJP MPs are chewing the cud at the dinner table about getting Narmada Prajapati to sign yet another wakalatnama and offering her protection, such that she does not authorize a lawyer outside their control. Listen in. ये बताओ अभी प्रॉब्लम क्या है, आपका कोई कांटेक्ट हुआ है क्या, और उसका क्या था, हमने जो करना था वो किया है, यानी कुछ तो हुआ ही है ना। एक बार मेरे 20-25 उसको कितने दिए है अभी तक? एक बार मेरे जाने की बात है। अच्छा, दूसरा पुष्प जी का ये कहना है, नंबर 2 विश्वविद्यालय है कि मुझे 15 और मिले थे और उनका कहना है हमारा 30 का कमिटमेंट हुआ था। ये दूसरी ये बात क्या वो कह रही है? इस बार जब गया तो इस कोई बात नहीं हुई। अरे राम इधर करती हुए तो वो कहीं सोलंकी वाला मामला इधर से सोलंकी वाला क्या
कुछ मोमेंटम है उसमें, या इसको सेपरेट रखे और वो उसका पहले मैं निकल हो ना, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो इतना सब कुछ किया तो आखिरी भी वो मुकाम तक पहुंचे। तो उसमें वो अगर अभी कुछ नहीं कह रही है तो वैसे ही जाके आप कर लाओ, अगर वो कुछ कहती है तो उनको तुरंत वो वहां कौन है उसको बताओ, तो कौन कॉन्टेक्ट आप दोगे, आप सीधा मुझे बता दो। अगर ये रोजी एडिशनल भी हो जाए तब वो काम होना चाहिए मुझे। एक बार बताना था मैं धन्यवाद को इधर उधर नहीं आ रही थी, मेन बात है ये समझ लें, एक बार विजिट करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योरिटी का जरा आप देख लीजिएगा। मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि अपन लोग दिल्ली में है, डिस्टेंस फैक्टर हो जाता है। ये लोकल बेस्ड आदमी जोड़ दीजिए ना, लोकल जोड़ रहे हैं। नहीं, जब तक मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगा वो सुनेंगे नहीं। तो कोई तरीका ऐसा हो कि जिसमें मैं बोलूं कि अम्मा ये नहीं, फिर तो मैं आपके साथ रहता हूँ, आपको मिला चाहता हूँ। ये ठीक है। इंदौर में मैं जाता हूँ, आपके साथ उज्जैन जाता हूँ। उज्जैन रहते ना, उज्जैन में फोन करके जाता हूँ और आपसे मिलाता हूँ। और तो कोई तरीका है नहीं? कोई तरीका नहीं है, क्योंकि शी इज सेटिस्फाइड डरी हुई है, क्योंकि मानसिक अवस्था को समझते हुए ये भी ठीक है। Are these BJP leaders operating in isolation? Is Amit Shah aware of the game plan? Does this conspiracy have the approval of Gujarat Chief Minister Narendra Modi? Earlier in the conversation, Prakash Javadekar had already informed the reporter that Amit Shah and Narendra Modi were constantly kept in the loop. अब तो आपको मैंने जाके मोदी को बताया, आप नहीं करना है उनको तो मत रहना। अच्छा, मीडिया मोदी से, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मोदी से बात किया, तो अमित को बताया कि मैं गया था, मेरी बात हुई और उसमें ये भी जिक्र किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि अमित ही उसको देखेगा और करेगा जो भी यूज करना है, और तो उसको ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये भी उसको बताया। अब फिर भी उसका नहीं आया तो इससे ज्यादा तो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है प्रकाश जी। According to Jawadekar's revelations, Narendra Modi has allowed full charge of the matter to Amit Shah. प्रकाश जावड़ेकर says, मैंने जाके मोदी को बताया तो उन्होंने कहा कि अमित ही उसको देखेगा और करेगा, जो भी यूज करना है और तो उसको रिपोर्ट करना है। Later at the dinner table, Bhupendra Yadav too confirmed that Amit Shah and Narendra Modi have complete information about the plan. Bhupendra further adds that Narendra Modi has instructed Amit Shah to supervise the matter. दूसरा आदमी मैंने कहा था, मैं बोलूंगा नहीं इसमें, देखा कि मैंने मोदी को बताया था, मोदी के साथ क्या बात हुई है, उन्होंने अमित भी देखेगा ये बताया था, ये अमित को भी बताया। This is political complexity of these power brokers. Amit Shah may be maintaining a low profile after being released on bail, and he may be confining himself in Gujarat Bhavan. But he has his teams planted in the two BJP-ruled states of Gujarat and Madhya Pradesh, who are backed by this team in Delhi to execute his plan. In ruthless violation of the law of the land, Gujarat police mercilessly eliminated 3 lives. And now there is an audacious attempt to manipulating the witnesses. All this with the sole objective of cleansing the blemished reputation of the former junior Home Minister of Gujarat, Amit Shah. 3 senior members of the BJP were appointed for the task. BJP National Secretary and Member of Parliament Bhupendra Yadav, BJP Leader and Rajya Sabha MP Prakash Javadekar, BJP General Secretary Ramlal. These BJP members from the upper echelon of the national political party, alas, they stoop too low to violate the very faith they are entrusted to uphold. These 3 senior members of the BJP are scheming to manipulate a key witness in the Tulsiram Prajapati case to cover up Amit Shah's involvement in the fake encounter. With the sole purpose of exposing this conspiracy, the undercover reporter has multiple meetings with these senior BJP leaders in the course of his investigation. Bhupendra Yadav needs no introduction. A lawyer by profession and National Secretary of Bharatiya Janata Party,
Bhupendra Yadav is Amit Shah's legal advisor and former RSS patron. Bhupendra Yadav is the face of several high-profile matters of the BJP and the RSS family. He is currently handling one of the most delicate cases slapped on the face of the BJP. In another meeting with the reporter, Bhupendra Yadav confesses, इस केस को लेकर थोड़ी सी चिंता थी. कैसा चल रहा है बीजेपी को इलेक्शन को? ठीक चल रहा है, इसी की चिंता है, वैसे निकल जाएंगे। सीट तो निकल जाएगी, वहाँ पे तो राजा है। अच्छा, इस केस को लेकर थोड़ी सी चिंता थी। नर्मदा बाई का बस वही है कि उनको थोड़ा सा, शी इज अ वंडरफुल लेडी, बट द ओनली थिंग शी इज स्केप्ड, एक स्लम में रहने वाली। तो अभी उसको जो मदद करी, उससे कुछ अपना कुछ तरक्की करी या नहीं करी? A little small talk and a few minutes later, Bhupendra Yadav sheds his diplomacy and addresses his immediate concerns. He has recently been informed that Narmada Prajapati has signed a new wakalatnama for Sohrabuddin's brother Rawauddin. If any other lawyer other than his own takes up the case of Narmada Prajapati, he would lose control of the legal outcome of the case. Bhupendra Yadav is anxious to seek help from the reporter in the matter. ये प्रकाश की बात है? नहीं, हमारे भाई साहब कि मुझे माता जी से कोई एफिडेविट वगैरह साइन करवा रहे हैं दोबारा से। हाँ, वो तो मैंने बताया। तो अब क्यों करा रहे हैं? बस ये जो इन्फॉर्मेशन आपने, अब हमारी मुलाकात आज हो रही है, ये चीज़ मैं 1.5 महीना पहले यहाँ बता चुका हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता है, आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, मैं अचानक रैंडम कॉल लेके विजिट करता हूँ, वहाँ जाके फिर मनोज जी को बात करता हूँ, सारे अपडेट देता हूँ। वो मुझे शाम को 6:30 बजे मिलने का टाइम देते हैं, फिर मिलते नहीं हैं, फ़ोन पे कहते हैं मेरी तबीयत खराब थी, आप दिल्ली बात कर लीजिए। तो एफिडेविट क्या साइन करा? rawauddin हाँ, rawauddin को कुछ दिमाग में चलता है, हाँ, तो वो हर बार जब भी डेट आती है तो उससे पहले नए पेपर साइन कराता है। हाँ। तो इनको डरा रखा होगा, तो शी वाज टेरिफाइड। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को जानते हैं ये लिखा, और मुझे कहते हैं साइन कर। मैंने कहा अम्मा साइन के लिए क्या बोलते हैं? तो पवन जो उनका लड़का है वो बता रहा है कि दोबारा से पेपर साइन करा दें, वकालतनामा करा लिए? नहीं, अब तब तक नहीं किए थे। जब मैं वहाँ से चला तो मैं गुस्से में चला गया। आप भी एक बार जाके आप चेक करना, है ना? अभी तक तो कराइए, क्योंकि अपना वो ये कह रहे थे कि अपना यही था कि वो साइन ना हो, उसकी गारंटी आते नहीं, गारंटी तो देखिए कैसे ले सकते हैं, वो अनपढ़ हो रहा था, उसके पास कोई आएगा तो उसका पेपर तो कोई भी साइन करा सकता है। एक बार पता चला। तो या तो डायरेक्ट एक्सेस हो, ये क्या करना है मुझे बताओ ना आप। भाई देखो, इतना तय हुआ था ना कि मतलब साइन नहीं होंगे, उसके लिए आपने कहा था कि मेरे को मेरा जो भी हिसाब किताब होगा तो पूरा नहीं, उसमें जो सीधी सी बात ये थी कि आपका ये वर्डिंग थी, मुझे अभी तक याद है कि हमें सिर्फ वकालतनामा चाहिए, यही शब्द था आपको, वो पूरा मिला आपको। उसके बाद उनको कोई डायरेक्ट अप्रोच करता है, डराता है, धमकाता है, तो उसकी गारंटी कौन देगा? हम देंगे ना, या तो प्रोटेक्शन दिलवाओ उसको, आप प्रोटेक्शन दिलवा दो, कोई घुसेगा नहीं। क्योंकि मैं अकेले अपने दम पर मैं हुई नहीं, मैं दिल्ली में हूँ, घटना उज्जैन वगैरह की है, तो बताइए कैसे? ठीक है। दूसरा, अभी बात हुई भाई साहब से, तो उसमें हम 2-3 टॉपिक्स थे। ये तो चलो अगर आप प्रोटेक्ट करा देते हैं उनसे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही टॉपिक है, मेरे पास जो बात है ना। The reporter had introduced himself to Narmada Prajapati as a writer and has thus managed to establish a personal connection with her over a period of time. Bhupendra Yadav wants to exploit Narmada Prajapati's trust relationship with the reporter. He seeks the reporter's help in ensuring that Narmada Prajapati does not sign any other wakalatnama or any legal documents in this case. This is the only manner in which Amit Shah and his legal advisor Bhupendra Yadav can plant his own lawyer to represent her in court such that he can weaken the case against Amit Shah. Now you can imagine the heightened anxiety caused to Bhupendra Yadav when the reporter comes back on a later date only to inform him falsely that Narmada Prajapati has actually signed another wakalatnama.
आपकी मुलाकात हो गई माता जी से? कुछ लिख के तो नहीं दिया? रोबुद्दीन आया था, डरा के गया। लिख के तो नहीं दिया? दिया दिया? क्या? एफिडेविट साइन कराया उसने, वकालतनामा साइन कराया है। पर हमारी शर्त तो यही थी कि नहीं, आप एक चीज मेरी तो सुनिए कि जहां मैं कंफ्यूज हूं कि हमारा मतलब आपने जैसे उस दिन रिक्वेस्ट की कि वकालतनामा मिलना चाहिए, एंड यू गॉट दैट, आई थिंक वो आप तक पहुंचा भी है। उसके बाद उनका जीवन शैली किस ट्रैक पे जाती है वो तो उसको चेक करना तो आपका या मनोज जी का काम था, या तो आप बहुत बिजी रहते हैं। और ये बात मैंने 1.5 महीने पहले प्रकाश जी के कानों में डाली कि नर्मदा जी के वो लोग अप्रोच कर रहे हैं, ये अपनी दुनिया में बिजी हैं। ये कहते हैं यार मैं कॉल करता हूँ, कॉल उठाते नहीं है, मैं नहीं करूँगा कॉल। It was imperative for the reporter to keep Yadav involved in the conversation, so the beans could spill on their own. Clearly, Bhupendra Yadav is extremely upset to see his plan falling, and he reveals his displeasure to the hidden camera. नहीं, विषय ये थे कि जो उस समय जो तय हुआ था तो ये हुआ था कि आप वो राशि लेंगे और उनको संभालेंगे। नहीं, राशि का मामला हर चीज ये प्रकाश जी के लेवल पर है, वो पर्सनल आपका मेरा तो नहीं था। पैसे का मामला जो भी है और प्रकाश जी और उनके लेवल पे एक और कोई है वो आपस में देखते हैं। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं एज ए राइटर वो मुझे जानती हैं क्योंकि मेरा उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी है किताब लिखने का, एंड शी ट्रस्ट मी लॉट। तो मुझे ये था, इन्होंने जैसे मुझे कहा कि यार वो अमित भाई बहुत डरते हैं कि वहाँ पर कहीं सीबीआई वाला बंदा ना हो, कोई ऐसा ना हो, तो आप एक थोड़ा फैसिलिटेट कराओ। एनीवे, चीज़ें मेरे ख्याल से आपने इतनी लंबी चेन शुरू से रखी, कभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं थे, तो मैं जो चीज़ें क्लियर करता हूँ वो चीज़ें एक्चुअल में होती भी नहीं है। अभी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या? अभी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? बताओ। आप बताओ। वो लिख के दे दिया तो विषय खत्म हो गया, तो सारा खराब हो जाएगा। अगर वो एफिडेविट साइन कर दिया तो वो वकालतनामे लाने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। दैट इज अ जीरो। भाई मैं आपको कोई चीज़ ला करके दे दूँ, लेकिन उसके बाद फिर उसका उल्टा हो जाए तो उसका लाने का उपयोग क्या? तो लाए नहीं लाए बराबर है। दैट इज अ पीस ऑफ पेपर। आप अभी कॉल करें और प्रकाश जी को मेरे सामने बात करवाएं। 1.5 महीना पहले मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। नहीं, दैट इज अ पीस ऑफ पेपर सर। इफ आई एम गिविंग यू ए वर्ड कि जी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और मैंने वो चीज़ ले ली, और उसके बाद मैंने कहा कि मैंने तो उस दिन तक के लिए खड़ा रहने के लिए कहा था, बाद में मैं खड़ा नहीं रहूंगा। ये कहा था कि एक बार वकालतनामा साइन करने के बाद दूसरा नया वकालतनामा साइन कर देंगे, फिर इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? Bear in mind that Bhupendra Yadav is the defense lawyer for Amit Shah in the Tulsiram Prajapati fake encounter case. He is giving instructions to obtain a wakalatnama from the complainant Narmada Prajapati so that he can plant one of his own men as a prosecution lawyer in the case. This is a several criminal offence tantamount to misleading the judiciary, and the magnitude of the crime is even more severe when the offender is a lawyer himself and a member of parliament. Clearly, the defense lawyer could not possibly be acting without approval from his boss Amit Shah. This makes him a co-conspirator under section 120B of the Indian Penal Code. By now, the reporter has managed to earn adequate faith from these players in BJP such that he is considered an insider in the case. It is with the same confidence of an insider the reporter meets with the BJP organization's General Secretary Ramlal. Ramlal is the senior most face of RSS in Delhi and one of the 5 members of the core team for Narendra Modi's election campaign. Both the times the reporter met Ramlal, it became increasingly clear that the BJP General Secretary was fully aware of the project to rescue Amit Shah. Watch the following intersection where Ramlal makes some serious confessions to the hidden camera. नहीं सर, मेरे को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बस भूपेंद्र जी कर रहे हैं। सांसद अपने हो सकता है, मतलब किसी ने ऐसा ना किया हो। उन्होंने मेरे से एक काम कहा और मैंने वो काम एग्जीक्यूट किया।
नहीं, उन्होंने काम कहा, उन्होंने मुझे काम करा, एक ही काम कहा, हाथ जोड़ के कि प्लीज बस ये है मेरा, ये काम कर दीजिए, यही हमारे को जीवन दान मिलेगा। हाँ, अमित जी वाले मान लो, हाँ, वकालत नाम वगैरह चेंज कराना, साइन वाइन कराने थे हाँ, तुलसी की माँ के, वो सब वो सब हुआ। उसके बाद यूज एंड थ्रो वाली कम्युनिटी के रूप में साइड में कर दिया। नहीं, वो जावड़ेकर जी जो मुझे स्वाद शेयर करते हैं, ये बताया उन्होंने, ये हुआ है। तो मैंने कहा देखो, यदि थोड़ा वैचारिक दृष्टि से एक कमिटमेंट के नाते है, इन सब चीजों की चिंता ना करें, अपना प्रोफेशनल जो उन्हें करना है वो करते हैं, और इसमें एक कमिटमेंट के नाते अभी सहयोग करें। हाँ, वो मैं पैशन से जुड़ा हूँ भाई साहब, आप जानते हैं। Changing the Wakalatnama to provide legal relief to Amit Shah. This is the political conspiracy to subvert the legal proceedings of the key witness, Narmada Prajapati. The BJP General Secretary Ramlal is aware of all the minute and sensitive details of this intense political drama. Take a look at the plot so far. This is Amit Shah, a close aide of Gujarat Chief Minister Narendra Modi. Amit Shah is the former junior Home Minister of Gujarat who was arrested in the fake encounter case of Tulsiram Prajapati and subsequently released on bail. Several senior members of the Bharatiya Janata Party are now intensely engaged in political and legal schemes to weaken the case against Amit Shah. According to their revelations to Indian camera, Chief Minister Narendra Modi is fully aware of the insidious operation to clear the charges against Amit Shah. Up north in the capital, Prakash Javadekar is the central hub of all information relating to this insidious operation. Just as he is in regular touch with Bhupendra Yadav in the matter, he also communicates all updates in the matter to Amit Shah and Narendra Modi. Bhupendra Yadav is directly conspiring with Prakash Javadekar in changing the Wakalatnama of Narmada Prajapati, and Ramlal is completely in the know of this entire conspiracy. And now meet the young lawyer who has been assigned the task of getting Narmada Prajapati's signature on the Wakalatnama. A lawyer by profession, Govind Purohit is the key pawn in the Wakalatnama conspiracy. Pay close attention to the visuals here. This is Govind Purohit at the residence of Narmada Prajapati. कब तक करवा दोगे? तो एट दी अर्लीस्ट जो भी रहेगा, मतलब अपन कोर्ट की प्रोसीडिंग को अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते, पर जो भी जल्दी से जल्दी हो गई, क्योंकि डेट डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात तो है, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट में तो अपन अपने हिसाब से नहीं कर सकते, नहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे चल भी थोड़ा। ये वकील पत्र है, वकालत का है जी, इसको साइन करें। तो ये आपको अधिकार दे रही है कि आप इनके बिहाफ पे लड़ोगे, ये इस बात का ही तो है ना? जी, ये लिखा है इसके अंदर, आपको ये लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे पढ़ के बताओ। नहीं, बोल पढ़ो क्या है ये अपने इसके अंदर आपको ऐसा एक वो है, कागज है कि ये मतलब आपकी तरफ से मैं शपथ ग्रहीता अपनी ओर से लंबित मुकदमों में 13वीं हेतु अभिभाषक नियुक्ति एवं प्रकरण के संबंध में अभिभाषकों से चर्चा हेतु एवं समस्त न्यायालयीन प्रकरण हेतु मेरी ओर से लिए जाने वाले निर्णय हेतु मुझको वकील को, इन वकील मतलब मुझे वकील को अधिकृत करते हैं। ये इनको आप अधिकार दे रही हो कि आपका लड़ सके, आपकी ओर से लड़ने के लिए, आपकी ओर से किसी को एंगेज करना हो और किसी को, तो इसके लिए अपन ये आपका ये पत्र है। आपने इनको आदेश दे दिया कि आप मेरा केस लड़ लो, तो इनका क्या चाहिए? साइन नहीं करती अम्मा, क्या कर काम तो अंगूठा भी चल रहा है। This is Govind Purohit getting Narmada Prajapati's thumb impression on the Wakalatnama. Little does Narmada know that she has just given thumbs up for Wakalatnama to be used against her at a later date. While perpetrators of this grand conspiracy have been successful in plots so far, well, little do they know that their actions have been permanently recorded on a hidden camera. ये तो सभी तो लगने वकील पत्र, तो आप बैठ जाओ ना, करवा लो जो करवाना है। मैं आपको करवा खोल दो ना उसको, उल्टा था।
Govind Purohit may be way down in the hierarchy of this political conspiracy, but he, Amit Shah's front man in the grand scheme of things. Take a look at this chain of command from Amit Shah to Govind Purohit. Amit Shah's defense lawyer is Ram Jethmalani. Bhupendra Yadav is one among Jethmalani's battery of lawyers and an MP from BJP. Manoj Dwivedi is appointed by Bhupendra Yadav to get a wakalatnama signed from Narmada Prajapati. Govind Purohit is a lawyer from Manoj Dwivedi's office who is appointed to collect Narmada Prajapati's signature on the wakalatnama. Govind is fully aware of the gravity of situation that he an integral part of. He knows the importance of wakalatnama that he managed to get signed by Narmada Prajapati. He is also aware of the disturbing connection of Amit Shah that has emerged in the CBI investigation of the fake encounter case. He fully understands that Narmada Prajapati's wakalatnama is a potent catalyst in weakening the case against Amit Shah. बात हो रही थी, वहाँ बड़ा लग रहा था इन्हें हवा में उछलने को मामले के, और तो नाम ही नहीं चार्जशीट, देखो चार्जशीट देखो ना, बाकायदा एक्सक्यूज में आया हुआ है जी। जब केस शुरू हुआ मतलब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पिछले 1.5 साल से, तो पॉलिटिकल सर्कल में बात करो ना किसी से, बीजेपी या इधर उधर कहीं भी, तो सब प्रो थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा, तो केस में इसका अमित का नाम नहीं आएगा। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे पता था। फाइनली दैट प्रूव्ड। तो सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटरिंग करता है तो क्या वो पीरियडिकल अपनी वो सारी अपडेट्स को लेता है या सीबीआई जाकर के अपडेट देती है? सीबीआई को डायरेक्शन चाहिए कि आप जो है क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर इस डेट को जब भी नेक्स्ट डेट रहेगी उस पर आप आगे बताइए, अपडेट दो। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी एक एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निगाह रखे हुए है। अगर कहीं भी पाएगा कि यहाँ पर डाइसी सा है या कंफ्यूजन है तो वहीं डांट पिलाएगा। तो वो उसी वही तो डर है, बाकी सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को डर ही इस बात का है कि इनकेस इनको यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन मिला तो ये अपनी नौकरी ले लेंगे, केस पड़ जाएगा उल्टा सीधा, बेकार बात है। However, Govind Purohit is but a minor pawn in the scheme of things. The strings of his actions lie in the hands of a mightier puppeteer. The signing of the wakalatnama is orchestrated by the head of the legal firm where Govind is an employee. And head of the firm is Manoj Dwivedi. Manoj Dwivedi is the additional advocate general of Indore bench of High Court. Now this is a very significant post because the state government directly appoints senior advocates to the post of additional advocate general. Turns out Manoj Dwivedi is a very close associate of the top brass of BJP sitting in Delhi and conspiring to save Amit Shah. तो ये मेरा एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन था। मैंने कहा आप अपने लेवल पे या तो टैकल कर लें, उधर भूपेंद्र जी बिजी रहते हैं। पहले वाला मामला दूसरा था, पहले वाले भूपेंद्र जी दूसरे थे। अभी सांसद महोदय होने के बाद क्या हो गया कि अब तो सज्जन पहचानते नहीं है, तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। हम थोड़े सेंसिटिव हैं, उस दिन में आपने थोड़ा महसूस किया होगा, तो मैं किसी को बात ही नहीं करता। एक टास्क था जो भी था वो हुआ, अब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। एंड शी शुड नॉट कंटेक्ट मी, हमारे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ के अंदर। अभी मैं पहुंचता हूँ तो गुजराती के ये पेपर वेपर हमें दे दिए जाते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स शी इज ट्राइंग टू कन्वे मी, है ना। ये अपने से कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ क्या बीच में, द गाय केम, वो दिस गाय, वो सेकंड पार्टी, उनको वही सब साइन वाइन चाहिए होंगे वकालतनामा वगैरह के, तो वो नाउ शी इज सेइंग कि मैंने एक दिन तो उसे टाल दिया। तो मैंने देखो भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, देयर इज समवन गाय, और उन्हें मैंने पैसे ऐसे दिए नहीं थे, तो हो सकता है इसलिए उन लोगों ने आपको टच नहीं किया होगा, तो मैं पैसे ऐसे दे दूँगा, वकील साहब वगैरह आपसे बात करते। तो नाउ यू प्लीज गिव डायरेक्टिव्स एंड ट्राई टू जस्ट, बिकॉज इफ यू आर गेट इन टच देन थिंग्स आर, ये इतनी सी बात है। All speculation about Manoj Dwivedi's involvement in the project to save Amit Shah will be put to rest in the following video. Listen in to his confession that he has been in touch with Bhupendra Yadav and Prakash Javadekar. ठीक है ना, करा दे।
है ना। इसके अलावा अगर ये है कि आप या तो बात कर लो भूपेंद्र जी से, आप जो भी हैं, मतलब मैं जस्ट वांट टू रिमेन इन अदर थिंग। ये चीज़ें थोड़ा सा परेशान है कि ड्राइवर को पकड़ो, ये पकड़ो, वो पकड़ो, असल में क्या है, मेरी पोजीशन भी वैसी है। मुझे उस वक्त सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको एक आपका जूनियर प्रोवाइड करना, मुझे बताया भी नहीं गया था कि क्या मसला है। मुझे मैसेज आया कि भूपेंद्र जी मेरे मित्र का प्रोफेशनल है, तो मैसेज आया कि बोले आप दो करते हैं, मैं दिल्ली आ गया क्या बात, बोले यार मुझे आपके कोई कलीग को दे दीजिए, क्या काम है क्या नहीं, क्या डिटेल आप बताएं कुछ। मुझे इतना बताया ये भाई साहब आपको मिलेंगे और इनको इतना ऑपरेट करना। अब उसके आगे पीछे का क्या है देखो, एबीसीडी भी नहीं पता है इसने बड़ी सुना एक वो उनके हुए लंच में सब चीज़ क्लियर होगी फिर मेरी बाद में प्रकाश जी से मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे कहा कि कम से कम आप अगर इन्वॉल्व है तो कम से कम आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पता है क्या रहता है, वो बिल्कुल सारे बात आगे उनको पोजिशन लीडरशिप ये वो आदमी के अलग अलग कैलकुलेशन। हमारी ये कैलकुलेशन नहीं है, यही सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसी फॉर्म एक जैसा I tried to get in touch couple of times with और कुछ सिंथेटिक टेस्ट भी करते हैं, स्पेशल आपको सेकंड टाइप का थर्ड टाइप हो जाएगा। आपके साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन जब मैंने आपको देखा, Manoj Dwivedi is the same Advocate General who instructed Govind Purohit to collect Narmada Prajapati's signature on a Wakalatnama. The Advocate General confirms to the reporter that he has been in touch with Prakash Javadekar and Bhupendra Yadav, thus connecting the dots in this labyrinthine plot. In the meantime, preparation is in full swing to weaken and finally obliterate the Tulsiram Prajapati fake encounter case. All forces antagonistic to the case were on the rise and pressure started mounting on the Prajapati's family. The family was sometimes threatened with dire consequences and at other times lured with a handsome compensation. लास्ट ईयर से ये कितनी बार लोग आए, अमित वगैरह के लोग, अमित शाह के लोग? ये आए थे 2 बार। एक बार तो उसी बोलने आए थे, दोबारा फिर मतलब पूछा कि राजीनामा ले लो। अमित शाह के बारे में? हाँ, अमित शाह के ये जो तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह आ रहे थे, आप बोल रहे थे ना कि पैसे ऐसे के लिए आते थे, वो राजीनामा के लिए? हाँ, वो बहुत पहले आए थे, बाकी 2 बार आए थे। कौन, गुजरात के थे कि यहीं के थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद से? क्या बोल रहे थे? ये बता रहे थे कि बोले तुलसीराम के जहाँ मतलब तुलसीराम बंद था उससे ही हम भी थे, पूरी जानकारी है हमको, और आप राजीनामा ले लो। मैंने कि राजीनामा कर लो, नहीं तो बोले हम तो खुशी से दे रहे हैं। इस पूरे मामले में ये लोग आ रहे थे तो फायदा किसका था? अगर आपसे राजीनामा करवा रहे थे ऐसा तो उन लोगों ने तो क्या रहने का था, अमित शाह का तो था। हाँ, आपको क्या फायदा? हाँ, कोई फायदा नहीं। भाई घर का लाल चला गया, तुम साले अब आ रहे हो तो ये तो धंधा ही करने आ रहे ना तुम हमारे पास। तो अब तुम्हारे मन में क्या है, सच की लड़ाई लड़नी है? अम्मा सच्ची लड़ाई लड़नी है मेरे को, बाकी बात ये है कि बाहर की जानकारी मेरे को नहीं मिलती है, मतलब कुछ अंदाजा नहीं रहता है। एक तो अखबार समाचार क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये पता नहीं है। तो लोग आया था ना An insignificant old woman in a remote village has suddenly become the center of political interest. Various faces come with various stories. Sometimes they come as sympathizers and at other times as co-prisoners of her son Tulsiram.
The sole objective of the visits is to obtain her thumb impression on legal papers. Narmada Prajapati fails to see any personal benefit in these random visits or signatures because she has seen no result. Even in her limited understanding of complex policies, she understands how Amit Shah is the one to benefit from these gimmicks. Clearly, Amit Shah has only figuratively confined himself to the Gujarat Bhavan, remote controlling his rescue operation in Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh, down to the small town of Ujjain. Now pay close attention to her elder son Pawan Prajapati's narration of the tactics adopted by Amit Shah's men to manipulate the Prajapati family. लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या नाम है, पिछले लास्ट टाइम कौन आया था ऑफर लेकर के? कोई आखिरी बार वही लाला करके था। वही लाला। हाँ, यहाँ नई सड़क पे और एक था छंगा महाराज करके, वो भी अपराधी छंगा महाराज करके लोकल है, लड़का ही नहीं का विलेन लोग। उसके बाद में एक आया था, तो मतलब उसके माथे पे वो था जैसा लोग नमाज पढ़ते हैं इंसान बन गया था, तो एक पत्रिका लेके आया था। जैसे मम्मी से बात करने का तजुर्बा उसने ऐसे निकाला, मम्मी कुछ नहीं देती ऐसे बोले बच्चे की शादी है, उर्दू में थी वो पत्रिका, वो पत्रिका शायद बुझी हुई होगी, बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ पत्रिका भी फ्रॉड थी, कोई शादी वादी नहीं थी। तो आए, बातचीत करी, मैंने तुलसी राम का दोस्त था, हम सांस रहे, फलाना रहे, दिखाना रहे। अब भैया तू 5 वक्त का नमाजी आदमी शराब तो नहीं पी सकता। देखो भाई साहब, मैं गलत आदमी हूँ, अभी मुश्किल मेरे को 10-12 दिन हुए शराब छोड़े, बाकी मेरे साथ उन लोगों ने शराब पी, क्योंकि मैं उनके अंदर तक घुसा। क्यों घुसा? जानकारी किसान सच्चा नमाजी है या नहीं है। हाँ, तो ड्रिंक करी था उनने, एटलस होटल में बैठ के दशहरे के दिन मेरे को बुलाया, आओ गया, मेरी बातचीत करी, मैंने अच्छी तौर तरीके से देखा कि इनके मन में क्या है। तो मैं तो आज भी पीने वाला हूँ, तुम सोचो कि मुझे अगर चढ़ जाए वो तो होगा नहीं। तो सब जैसे कि रणनीति निकाल ली, और 1-2 लोग नहीं थे वो, यहाँ से 1-2 लोग आए थे, बाकी होटल में ठहरे हुए थे कम से कम 10-12 लोग आए थे। किसके आदमी थे? बस 3 लोगों के नहीं किसके लोग बेटा 2 कप है पवन, किसके लोग थे? अमित शाह के भेजे हुए थे। हाँ, तो उन्होंने जिक्र किया अमित शाह का? कुछ भी जिक्र नहीं था, बस इतना ऐसी बातें चली उनकी। बाकी वो लोग किस तरह के थे कि जैसे अगर जैसे राजीनामे का बहुत हद तक वो बात गई भी थी दूर, बाकी फिर ये रुबाबुद्दीन ने कैंसिल करवाया। और मैंने एक बार स्पष्ट पूछा तो ऐसा क्यों नहीं करता, तो बोले क्या बुढ़ापे में तेरी मम्मी को जेल भेजना चाहता है, तू इस तरह की धमकी दी थी इसने मेरे को। बुढ़ापे में तेरी मम्मी को जेल भेजना चाहता, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, माता जी जो कर रही। बाकी जब कोई जैसी ऐसी बातें होती है कि नहीं यार अपनी माँ के खिलाफ कुछ ज़्यादा करे, हम दोनों माँ बेटे लड़ते हैं या कुछ भी हमारे घर में पारिवारिक विवाद वो अलग है वो। तो आज मुझे कोई बाहर बोलेगा तो मेरी माँ आएगी सही के दिया कैसे बोल रहे। तो वैसे अगर मेरी माँ के साथ अगर कुछ अत्याचार हुआ तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो बोलूँगा। तो मैंने इसकी बात होती बोले कि बुढ़ापे में तुम्हारी मम्मी को वो कराओगे क्या, जेल कराओगे? मैंने क्या हो सकता है कोई कानूनी फंडे में उग जाए। हाँ, कागज को भी रिसाला कोई साइन चुन कर रखा हो। हाँ, तो वो लोग भी इस तरीके से कि कुछ ज़्यादा पैसा लेके कम पैसा इधर लेके राजीनामा करवा ले इस तरह। तो राजीनामा करके ये पैसे का देके फायदा किसका था? राजनीतिक रूप से फायदा? हाँ, राजनीतिक रूप से तो अमित शाह का ही फायदा था, और जो IPS लोग बन रहे हैं उनका फायदा था। ये सब लोग मिलके और पार्टी को दे जाता है, ये सीधा दिखता है ना। और फिर समाज के लोग आए, तो जब उन्हें लगा कि पहली बार दरवाजा बंद हो गया तो समाज को पकड़ा। हाँ, फिर आर्सद जैसे लोगों को पकड़ा, दूसरे लोग। Pawan Prajapati is a younger brother of Tulsiram Prajapati.
He informs the reporter that Amit Shah's people approached him in a creative variety and tried various means of luring him into submission. It is little wonder why such creative means are employed for getting the Rajinama of the Prajapati family. It all goes back to Tulsiram Prajapati being the prime witness to Sohrabuddin fake encounter case. The Gujarat police is working round the clock to eliminate all traces of the key witness in the Tulsiram fake encounter case so Amit Shah can be cleared of all charges. Even the politically non-savvy Prajapati family can see through these machinations. First they approached by small-time criminals, followed by persuasive attempts by social workers, and then finally forced through threats, with a promise of a handsome compensation in return for the compromise, or by planting a lawyer appointed by the rival team to represent the Prajapati family in court. The motive is clear. The BJP team working on saving Amit Shah is planting its own man in the courtroom. Pawan Prajapati further reveals the open nexus between Amit Shah and the various gang lords. ये वो तो जिससे बोले जिसको जो काम करना पड़ता है, जिस किसी भी गेम से अगर कुछ बोल दे, किसी भी गैंग से, हाँ, तो वो काम करना पड़ता है उसको। बड़े बड़े लोग हैं, तो मैंने कि मेरी बात का अरे नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती उनसे। अच्छा, ये बोल रहा है कि अमित शाह तो उसकी सारी गैंग से रिश्ते हैं। जैसे गैंगस्टर, जैसे इनका इनकाउंटर क्यों हुआ, उसका कारण ये है, जैसे बड़ी बड़ी जो गेम जो बहुत उन्नत हो जाती है, किसी से भी फोन पे पैसा मंगा लेना, ये कर लेना, ऐसे लोगों से जो कॉन्टेक्ट में अपने जो काम करवाना, मुद्दे हल करवाना, उसके बाद में अगर अपने पे भारी पड़े तो उनका काउंटर करवाना, उसके बाद कर दो, हो गया भैया, थैंक यू तुम्हारा। हाँ, सीधा ऊपर ही जाना है तुम। फिर तो इस टाइप से इनके, और आज भी गैंगस्टर लोगों से मिले हुए हैं लोग। अब जैसे गृह मंत्री जो बोलेगा आईपीएस अधिकारियों को फलाने को, तो उनकी मानना है, बोल दिया कि अगर फलाना आपने कहने से बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं, इसको कहीं भी ले जाके ठोक दो, इनकाउंटर कर दो। Pawan Prajapati elaborates the genesis of fake encounters that are carried out at the instructions of the Home Minister. He describes the close nexus between the Home Minister and police force and the gangsters they use as extortionists who are then eliminated through fake encounters when they become too dangerous. And what happens to the family of the deceased? Pawan says he was offered 20 lakhs and promised a sarkari naukri. Listen in. नहीं, उस मीटिंग में फिर हुआ क्या? उन्होंने कैसे ये जिक्र तुम्हारे दिमाग में आया कि साला ये लोग मतलब अमित शाह का फायदा कर रहे हैं? उस समय अमित शाह का नाम ओपन नहीं हुआ था। अच्छा, तो पहले से ही डील करके खत्म कर ले जा रहा है। पहले से खत्म कर, राजनीति की इनकी पहले से डील खत्म कर, नाम ओपन ही नहीं हो, उससे पहले ही अपन जो है इस मांग को ठंडा कर दें। तो ऑफर दे रहे थे, कितने की? 20 लाख रुपए बोल रहे थे, 20 लाख रुपए दे देते हैं, और मुझे बोल रहे थे कहीं नौकरी लगा देंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा देंगे फलाना। तो अमित शाह का नाम लेके थोड़ा डराने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग तो बहुत पावरफुल है, ऐसा कर देंगे। नाम नहीं लिया उसने, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, बाकी से भी कितना पता है पावरफुल लोग हैं। उसके बाद में जैसे सीबीआई जांच बैठ गई, हम लोगों ने कहा नहीं, तो जैसे सीबीआई जांच बैठी, एक भी नहीं, सब भाग गए, फिर कोई नहीं आया, सब्जी बढ़ गई, ठंडे हो गए। Pawan reveals how Amit Shah's men showed great interest in the Prajapati family by offering lakhs of rupees and promise of a job in a public office. The objective was to do whatever it takes to nip the case in the bud through police investigation and not let the matter reach the CBI. Prajapati family was offered various carrots but finally dropped like a hot potato after the Supreme Court ordered the CBI to take up the case. Pawan says, 20 लाख बोल रहे थे, 20 लाख रुपए दे देते हैं, और मुझे बोल रहे थे कहीं नौकरी वोकरी लगा देंगे तुम्हारी। जैसे ही सीबीआई जांच बैठी, एक भी नहीं देखा, सब भाग गए, ठंडे हो गए। बट द कोर्स, देयर इज वन पर्सन हु बेनिफिट्स द मोस्ट। ना ठीक है, मैं ये पूछा था कि इस पूरे खेल में ये लोग आते हैं जाते हैं, ये सब होता है, इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका है? गर्दन सबसे ज्यादा किस ताकतवर आदमी की फंसी हुई है? और उन्हीं को फायदा है, उन्हीं की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और इस लड़ाई को इतना आगे बढ़ा करके पैसे की डील कौन बड़ी कर रहा है? तो बात ही कर रहा है। तो इसका मतलब दो बड़े लोग आपस में बैठ के कब चाय पी लेंगे कोई जानता नहीं है। ये तो ईश्वर को पता है, ये सब भगवान को पता है। मगर कुल मिलाकर के
ये जितनी भी लड़ाई है मुझे तो नाटक सा कई बार दिखता है कि हाँ, ये नाटक ही है। ये एक नाटक है जो कुछ ताकतवर लोग खेल रहे हैं और एक सिंपल सा जो गरीब इंसान है उसे पिक्चर का पता ही नहीं है चल क्या रही है। तो सबसे बड़ी ऑफर कितने की है? 20 लाख रुपए के। कौन दे रहा था? वही वो क्या है, यही के लोकल लोग बोल रहे थे। अब उनको कहीं से संपर्क में होंगे, उन लोगों ने अपने संपर्क सूत्र बताया भी। लेकिन ये समझ में आता है लोकल आदमी तुम्हें आकर के फालतू बनाए के जो आगे देगा। हाँ, ये किसका पैसा होगा? आगे से ही होगा, किसका? अमित शाह का ही होगा। फिर तो तुमने कभी किसी को जिक्र नहीं किया पुलिस को इस बारे में? वो नहीं ऐसे आसानी से थोड़ी मिलता है, मेरे को जाना होगा तो कागज पे साइन करना होगा। ऐसे बोल रहे थे? मेरी तरफ से माफ हो सब आप। अच्छा, क्या बात है, ये बात निकली। मिलना क्या बोले? बोले मेरी तरफ से माफ हो, मतलब ऐसा मेरे को बोलना है, मतलब कोर्ट में लगाना है। हाँ, अब साइन तो क्या मेरे से आगे पढ़ाई कोई पूछे तो कर नहीं सकती मैं। भाई जो क्लियर नहीं बता पा रही, न्यूज उनका कहना है कि जो पुलिस तफ्तीश कर रही है उसको, इस तफ्तीश को पुलिस को ही करने दिया जाए, सीबीआई जांच नहीं चाहती। अच्छा, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी तो हमारा गर्दन जो है फंसती है ना। तो आपको बोल रहे थे कि हम साइन करो या और अंगूठा लगा दो, आपको चलना पड़ेगा। तो इस सारे फायदे में अब बात में अम्मा किसका फायदा है? उनका फायदा है। उनका नहीं है, ऐसे साफ बोलो ना। नाम किसका आता है? मेरा आता है। नहीं, अमित शाह का फायदा किस इंसान का है? एक इंसान कौन है जो इतना ताकतवर है कि इस पूरे आपके माफ करने से कौन बचता है? वो बात ये है कि 15-16 आदमी है उसमें तो बताया है। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सबसे ताकतवर तो अमित शाह है। तो जो ये पैसे की ऑफर देगा, जो कोई सड़क चलता आदमी देगा? नहीं देगा। और ये भी मतलब वहाँ जाने के बाद में मतलब मेरे से साइन करवाया जाए, बुलवाया जाए, उसके बाद में पैसे दे दिए जाए और मेरे को गोली मार दे। The Prajapati family has not received any compensation for their loss. If anything, Narmada Prajapati is circumspect about the intention of generosity extended to her. In her words, नहीं देगा। पर ये भी है, मतलब वहाँ जाने के बाद में मेरे से ले लेंगे, साइन करवाए जाएं, बुलवाया जाए, उसके बाद में पैसे दे दिए जाएं और मेरे को गोली मार दें। Pawan Prajapati and Narmada Prajapati are not the only people leveling accusations on Amit Shah. An accomplice of Sohrabuddin and accused in several other crimes is Azam Khan, who uncovers the hidden acts of Amit Shah. Azam Khan is a co-accused in several cases slapped on Sohrabuddin, and more importantly, he is the star witness in Tulsiram Prajapati fake encounter case. Listen into the narrative of this star witness of the CBI who is under state protection because he will testify in the Tulsiram Prajapati fake encounter case. His testimony will determine the fate of Amit Shah and the senior officers of Gujarat Police. This is Azam Khan's absolutely fearless statement on the hidden camera, which has not yet done the rounds of the Indian courts. But first thing first, how does Azam Khan know Tulsi Prajapati? तुम्हारी जो सोहराबुद्दीन से, सिल्वेस्टर से और तुलसी से मुलाकात हुई थी वो कब हुई, कैसे हुई? सिल्वेस्टर तो उदयपुर के रहने वाला है। सोहराबुद्दीन से मेरी मुलाकात सन 2001 में समझी हुई थी। सोहराबुद्दीन से कहाँ? उदयपुर जेल में? इंदौर में। वो भी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी साबर, वो साबरमती कोई केस है, हत्यारा उनका, हाईकोर्ट से शायद छूट गया था, हाईकोर्ट से छूट गया था, बरी हुआ या कैसे हुआ, हाईकोर्ट से छूट गया। फिर वो इंदौर में इसका छोटा भाई, सौरभ भाई का छोटा भाई नायब, वो मेरा दोस्त था। वो भी वांटेड के अंदर, मैं उदयपुर से वांटेड था, उस चक्कर में वांटेड में दोस्ती उससे हो गई थी। उसके थ्रू उसके माध्यम से सौरभ भाई से दोस्ती हुई। सौरभ भाई के साथ में तुलसीराम उदयपुर आया था, तो यहाँ पे मेरे उससे पेश जेल में।
नहीं उदयपुर हमारी सिटी के था। और सिल्वेस्टर तो यही लोकल उदयपुर के था, मेरा दोस्त था शुरू से, छोटा था तब से साथ ही रहता मेरे। वो भी क्राइम की। It is worth noting at this point that the criminal crime rate of Sohrabuddin, Azam Khan and Sylvester was notorious for extortion cases in Gujarat and Rajasthan. The extortion racket was making massive money by threatening various businessmen for insane ransom. In a bid to make quick big money, they were targeting big businessmen. According to Azam Khan, it is not just the uniformed officers, but even ministers like Amit Shah were involved in extortion racket. चुड़ासम्मा के और बंजारा के संपर्क में कैसे आए? सौरभ भाई में आप लोग दोनों सब? मैं इनके संपर्क में नहीं था। मैं तो सौरभ भाई के थ्रू जानता था। हाँ। तो क्या किया बंजारा के लिए और चुड़ासम्मा के लिए? जो उधर जो बड़े बड़े जो लोग थे, रसूल पार्टी नहीं, मसूल पार्टी तो कुछ क्रिमिनल था कि सबसे इनके टच के लोग ही बंजारा इन लोग के, तो भाग गए, इंडिया से भाग गए लोग। तो इंडिया में बचे कौन? इंडिया में खाली सौरभ भी बचे बड़े में, बाकी सब बड़े बड़े या तो मर गए या फिर कोई अंदर जमा है। मुफ्ती सुफियान तो बाहर ही है। वो इसको इन्होंने भगवा दिया ना। किसने भगवाया? ये तो यहाँ इनका गुजरात पुलिस ने भगवाया उसको। A little background is warranted here. Azam Khan and Tulsiram Prajapati spent 8 months of their prison time together in Udaipur jail in Rajasthan. They were accused in the murder case of gangster Hamid Lala in 2004. In course of time, their friendship became so thick that several details of Prajapati case became clear through Azam Khan's revelations. चुड़ासम्मा का और इसका क्या रोल था इसमें बंजारा में? बंजारा का चुड़ासम्मा के बारे में कंफर्मेशन मेरे को नहीं है, झूठ नहीं बोलने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हकीकत बात। आपको तुलसी ने क्या बताया जेल के अंदर? तुलसी प्रजापति ने चुड़ासम्मा, बंजारा, सोहराबुद्दीन वगैरह के बारे में? तुलसी ने बताया मेरे को कि इन लोग ने मेरे को गुजरात वालों ने मुझे पकड़ लिया, गुजरात वालों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे से यार यूँ मैं तो बहुत मिस्टेक हो गई, मैं बहुत रोया तुझे कि यार मैं तो गलती हुई यार बहुत। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि क्या हुआ क्या यार, ये हकीकत कही है, कहानी बता सही। क्योंकि उधर इधर तो सौरभ का काउंटर हुआ, उसके तीसरे दिन ही तुलसी की, दूसरे दिन ही पेपर में तुलसी का अरेस्टिंग शो हो गई। तो फिर तुलसी पर जेल में आया तो उन्होंने मेरे को एक राजू करके, मेरे साथ एक लड़का और था राजू, बंटी, और अंदर भी है जेल में दो। बात कर लेंगे, थोड़ा भेजा सही रहेगा। तो उसने मेरे को बोला कि जो मैंने कहा तो सच्चाई की है इसके अंदर, मतलब कारण क्या हुआ, सौरभ भी कैसे जमा हो गया, तू उधर पकड़ा गया, सौरभ भी वहाँ पकड़ा गया। तो मैंने कहा बात पॉसिबल ही नहीं है, तो पुलिस नहीं आ गई ऊपर। तो मैं तो बहुत भारी मिस्टेक हुई यार, तो चूतिया बना दिया है, मैं फोन नहीं कि गुजरात बना। नाम के लिए कोई ने फोर्स किया था मेरे को, इसलिए मैं नाम दिया, बाकी नाम नहीं बोला उन्होंने, गुजरात वाले बोला। गुजरात क्योंकि यार मुझे पकड़ लिया था, बड़ा आया था, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, भाई पकड़ा नहीं, अरेस्ट नहीं, पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे प्रलोभन दिया कि देख ये तो छोड़ देंगे, सौरभ को तो पकड़ा दें। मैंने कहा मैं सौरभ को कैसे पकड़ूंगा, तो सौरभ को बुलवा ले, कि नहीं मेरे बुलाने से तो नहीं आएगा, मैं फोन करके बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास मिल गया कि देख हम सौरभ को नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं, हमें सौरभ पे यार हमारे पे बहुत प्रेशर है कि सौरभ ने इतने बड़े बड़े लोगों को धमकी दे दी और फायरिंग वायरिंग करवा दी, तो यार हमारे पे बहुत बड़ा प्रेशर चल रहा है, राजनीतिक प्रेशर। अगर सौरभ को अगर तूने पकड़ा दिया तो सौरभ तेरे को तो हम छोड़ ही देंगे, सौरभ को भी केस बना के उसको जेल पहुंचा देंगे, वो महीने 6 महीने में छूट जाएगा। तुलसी उनकी बात में आ गया, फिर तुलसी को उन्होंने छोड़ भी दिया, पूरा भरोसे में ले लिया उसको कि हाँ भैया अपना आदमी है उसको, क्योंकि जैसे मालूम तुलसी को ऐसे भाग तो सकते ही नहीं है, तो कुछ चूतिया बना के अपन भाग भी जाएंगे, अगली बार हाथ आती मार देगी अपन को। तो फिर तुलसी राम को जब उन्होंने छोड़ा, तुलसी उनके पूरे भरोसे में था। तुलसी ने सौरभ भाई को बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ भी दिया, और आपके लिए ऐसी भी बात नहीं।
तो तुलसीराम और सौरभ भाई के साथ ऐसे ऐसे मिल गया, जैसे नॉर्मल था उसे रहने लग गया। वहाँ से सौरभ भाई के साथ वो हैदराबाद गया, उनकी वाइफ का इलाज चल रहा था। तो वापस आते हुए यार वापस आ रहे थे, तो यार मैंने वहाँ से टिप दे दी थी उसने कि हम लोग निकल रहे हैं। तो उन्होंने फिर जैसे कहाँ से नाके में कहाँ घेराबंदी करी, सांगली की वहाँ आते थे, उसने इन्फॉर्म करा कि हाँ सौरभ भाई सो गए। तो उन्हें जगते हुए हाथ डालने में उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। उनको ऐसा मालूम था कि सौरभ भाई के पास कोई वेपन वगैरह होगा, तो वो भी कुछ रिटर्न करेगा भागने के अंदर, क्योंकि वो एकदम तो सरेंडर करेगा नहीं अपने आप को। तो उसके सोने का इन्होंने इंतजार करा, और जैसे उसने आगे किया, मैंने बोला यार कि हाँ सौरभ भाई सो गए, तो फट इन्होंने गाड़ी रोकी और रोक के फटफट अंदर आ गए, तो वो उतार लिया तीनों को नीचे। फिर हमें ये इंदौर ले आ गए। इंदौर में किसी फार्म हाउस पे लेके आए। पूरे किसका फार्म हाउस ये तो मालूम नहीं, किसी का फार्म हाउस पे लेके आए। बोले उसके बाद मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन, जब दूसरे 27 तारीख को मेरे को न्यूज़पेपर बताया गया था तेरा सौरभ का तो काउंटर हो गया, भंवर सिंह खाड़ा ने बताया। तो बोले यार किसने? भंवर सिंह खाड़ा। कौन था वो? इस यहाँ का SHO ही था, 3 स्टार। बोले यार उसने बोला जैसे कि देख तेरा सौरभ का काउंटर हो गया। तो यार मैं फिर तुलसी के यार बहुत मैं रोया वहाँ पे, मेरा दिमाग खराब हो गया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया। मैंने वहाँ भी कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे साथ धोखा करा, तुमने मेरे भाई को मार दिया। खाना भी खाया, न्यूज़पेपर ने भी दिया था, खाना वाना भी नहीं खाया। उसके बाद तुलसी ने बताया कि यार रात को मैं जब बहुत रो रहा था, तो मुझे भंवर सिंह खाड़ा ने मुझको चरस ला के दी। तो मैंने चरस बहुत पी, चरस सिगरेट ला के दी, चरस ला के दी, तो मैं पूरा चरस पी गया। और मैं ऑफिस के अंदर ये सोचे तो मैं सो गया, सोया नहीं था, मैं चल रहा था। मुझे नींद भंवर सिंह जो सुधीर जोशी करके आया डिवाइस में, तो भंवर सिंह ने कहा कि ये तो सो गया है, तो रो रहा था बहुत, मैं चरस दी इसको पी के सो गया। Azam Khan narrates how Tulsiram Prajapati was used as a bat to catch Sohrabuddin. Tulsiram was brainwashed into believing that Sohrabuddin would be merely captured because there was a lot of political pressure from Gujarat. But when the SHO Bhanwar Singh Ghada relayed the news of Sohrabuddin encounter, Tulsiram was filled with remorse for having betrayed his friend into a fake encounter. Not aware that Tulsiram was privy to their private conversation, SHO Bhanwar Singh Ghada and DSP Sushil Joshi make some disturbing revelations. तो फिर दोनों आपस में डिस्कशन कर रहा हूँ, दोनों बातें कर रहे थे कि यार सारी मेहनत तो हम लोग कर गए, पर मुझे तो इन नेताओं की हो गया। तो फिर उसने भंवर सिंह खाड़ा ने DYSP को पूछा कि सुधीर जोशी से कि क्या मतलब क्लियर तो बताओ कि यार कुछ नहीं यार, अपना सारा इतनी मेहनत करी और सारे पैसे सब ये नेता लोग खा गए यार। पैसा सारा नेता खा गया। कौन कौन थे नेता? नेता के अंदर कटारिया का नाम लिया उन्होंने, नेता लोग खा गए और कटारिया का तो नाम लिया, होम मिनिस्टर का, गुलाबचंद कटारिया। तो फिर उसने ही बोला कि मेहनत करे तो मुर्गा अंडा खाए फकीर, या तो ये तो अपना सारा ऐसा हो गया है। तो मेहनत तो अपन ने करी ना, फिर मजे इन लोग के हो गए। जो पैसे वो RK वाला पैसे दे रहा था 20 करोड़ रुपये फिरोजी मांझी के लिए, सौरभ भाई नहीं है। मैंने मना कर दिया था इनको, मतलब ये बहुत खतरनाक आदमी, खतरनाक बोले तो बहुत बड़ा आदमी है, इससे पंगा मतलब गवर्नमेंट इसके ऊपर चलती है, ये गवर्नमेंट पे नहीं चलता। कोई भी सत्ता में रहेगा गवर्नमेंट अपने यहाँ पर राजस्थान में, वो इसकी अधीन ही रहेगी, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। मैंने इनको मना करा था इससे पंगा मत लो, तो भी इन्होंने उसकी उंगली कर दी थी, उसको कड़ी बड़ी दे दी, मैं उसको धमकी दे दी, उसको बोल दिया था स्कॉर्पियो उसको नहीं करी दी, तो वो तो आदमी फिर वो थोड़ी पैसा देगा इन्हें। फिर क्या कि इन्होंने क्या करा, तो सौरभ भाई को पकड़ा नहीं, सौरभ भाई ने किसी की स्टेटमेंट लिखा है कि हम लोग उससे मारने के अंदर हमें पूरी प्लानिंग थी, RK वाले को लिए न वो, तो RK वाले को इन्होंने वो स्टेटमेंट दिखाया और उनको ठोका, फिर RK वाले से इन्होंने पैसे उठा लिए, सब बड़े बड़े लोगों ने उधर से मांझारा ने। Azam Khan is a star witness of the CBI in Tulsiram Prajapati fake encounter case.
and provides all the missing links in the fake encounter of Sohrabuddin Sheikh and Tulsiram Prajapati. You just heard him describe the intricate details of how the Sohrabuddin fake encounter case was orchestrated and how Tulsiram Prajapati was used as a bait to trap Sohrabuddin. Azam Khan's fearless narration now implicates former Rajasthan Home Minister Gulab Chand Kataria in the Sohrabuddin fake encounter case. After eliminating Sohrabuddin and Kausar B, Tulsiram Prajapati was naturally the next victim of a fake encounter. गुजरात से बंजारा ने भेजा जाता था, लेकिन गुजरात में बंजारा ही खेला था। और इसने कटारिया ने कटारिया के लिए तो इनने बोला, सुधीर जोशी को बोला कि कम से कम 20 करोड़ रुपए लिए। अभी किधर है सुधीर जोशी? डीवाईएसपी या में है डीवाईएसपी, डिप्टी डीवाईएसपी को बोलते हैं। हाँ डीवाईएसपी। फिर उसके बाद तुलसी और हम साथ जेल में रहे, कम से कम 6 साल, 1 साल तक पूरे जेल में रहे। 1 साल के बाद तो तुलसीराम हमेशा कहता रहेगा बहुत बड़ा धोखा करा अपन साथ, अन्ना को ठोक दूंगा, इस अन्ना को ठोक दूंगा। अन्ना कौन? अन्ना बोले दिनेश अन्ना के लिए, दिनेश अन्ना डीवाईएसपी एसपी दिनेश अन्ना, इसके अन्ना को भी ठोक दूंगा और बंजारा को भी ठोक दूंगा। उसके हमेशा ये कमेंटमेंट मतलब मार्केट में एकदम बिल्कुल पॉपुलर हो गए थे। इतना ज़्यादा बोलता था, तुलसी डरता किसी से था, बहुत तेज था वो लड़का। मैंने उनकी बातों में कैसा आ गया था वो अल्लाह जाने। बाकी वो लड़का था वो लीडर, तो इतना खुले ही बोलता था कि जिस दिन मैं भाग गया जेल से उनको ठोक दूंगा। ये बात एक इन्फॉर्मर, जेल में एक इन्फॉर्मर था अहमद जावेद नाम का, हिम्मत नगर, वो इन्फॉर्मर ही था वहाँ का, अहमदाबाद का इन्फॉर्मर था। यहाँ पे भी पुलिस ने इसको यहाँ की पुलिस को बोल दिया होगा तो यहाँ की जेल की सारी इन्फॉर्मेशन को पास करता था। तुलसीराम उसके सामने कई बार बोला कि दिनेश ने तो मार दूंगा। वो बात उन्हें फॉरवर्ड कर दी। वो बात जो फॉरवर्ड हुई ना, उस बात से क्या ये लोग सब टेंशन में गए, तो इन्होंने क्या करा कि हम दोनों को मारने की तुलसी को Azam Khan's statement makes it disturbingly clear how extortionists sit in high-powered political seats and have senior police officials dance to their tunes. Sohrabuddin's growing notoriety was becoming a menace to the businessmen and ministers alike. Renowned RK marble traders moved political power and police forced to put an end to Sohrabuddin's life. अच्छा, सीबीआई कहती है कि सोहराबुद्दीन को पॉपुलर हाउस फायरिंग केस के अंदर फंसाया गया था, तो तुलसी ने तुम्हें कभी इस फायरिंग केस के बारे में बताया? नहीं, फायरिंग हुई थी, सचमुच में हुई थी, झूठा नहीं बताया। फायरिंग करी किसने की? पॉपुलर बिल्डर में, हाँ, उसके ऑफिस में। सोहराबुद्दीन ने की थी? सोहराबुद्दीन उदयपुर में। हाँ, मैं उदयपुर में था, तो मेरे को सोहराब भाई ने घर को बुलाया। मैं फ़ोन किया उनको, उनके नंबर पे मैंने फ़ोन किया, क्योंकि मैं स्टडी से फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई कहाँ हो? तो बोले घर पे हूँ। तो मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले तुम यहीं आ जाओ। मैं उनके घर पे गया, तो वो जो घर जिस घर में वो रहते थे ना, वो घर मेरी बुआ का मकान था। अच्छा, यहीं उदयपुर में? उदयपुर मेरी बुआ का एक बंगला है, वो खाली पड़ा हुआ। तो मैंने सौरभ भाई को रेंट पे दिला दिया था। मैंने कहा बात कही, तो बोला कि यार पॉपुलर वाला भी यार अपने जो पैसे बाकी थे उसकी 35 करोड़ रुपये वसूली। 35 करोड़ रुपये? मतलब फिरौती नहीं है, वो वसूली का काम था। कोई मांगता था उसके अंदर, मणिलाल शाह करके। मणिलाल शाह है गुजरात का एक बड़ा फाइनेंस है, उसने फाइनेंस किया था 35 करोड़ रुपये। तो 35 करोड़ रुपये की यार ये साला अपन को उन्हें 1 करोड़ रुपये दे दिया था पहले इसने, रमण दशरथ पटेल लोग भाई 1 करोड़ रुपये तो दे चुके थे लोग, बाकी पैसे दे ही देते। तो सौरभ भाई ने फायरिंग करी इनके ऑफिस के अंदर। अच्छा, जब बंजारा ने इसको, जब तुलसी को वहाँ पे रिमांड पे लिया, दूसरे तीसरे दिन रिमांड पे ले लिया था बंजारा में, पॉपुलर बिल्डर के अंदर। अमित लाला मर्डर में यहाँ पे इन्होंने पेश कर दिया उसको। पेश करके जैसे भी नहीं हुआ और जेल के गेट से गुजरात पुलिस लेके चली गई, ATS वाले। ATS तो वहाँ पे तुलसीराम को बंजारा ने बोला था कि तेरे को भी भेज देंगे अगर ज़्यादा करा तो चुपचाप आराम से रहे, तेरा खर्चा हम सब संभाल लेंगे, तेरे को वक्त आने में तेरे को बेल दिलवा देंगे, थोड़ा आराम से रहे, तेरा जेल खर्चा वगैरह हम संभालेंगे। इसका जेल खर्चा संभाला भी है उन्होंने, तुलसी ने बताया था। खर्चा मेरे सामने दिया ना, मेरे सामने खर्चे की किसने दिया? इनको वहाँ के यहाँ पर हम कोर्ट में पेश भी जाते थे। अच्छा, पुलिस वाले देते थे? हाँ, नहीं पुलिस वाले नहीं, ATS वाले। उनका ड्रेस कोड नहीं था। अच्छा, ड्रेस कोड सिविल में रहते थे? सिविल में। तो कौसर बी की मर्डर के बारे में क्या बताया उसने?
कौसरबी के मर्डर में तो मेरे को भी तो मेरे सामने भी तो अपने चुरा चुका उसने क्या बना मैं वनजारा ने बोला कि तेरे को भेज दूं क्या कौसरबी और सौरभ के बाद जहाँ पे उनको भेजा मैंने कहा तेरे को भेज दूं क्या ये बात वनजारा ने बोली? वनजारा ने, क्योंकि मेरे को भी इनने रिमांड पे लिया था नहीं, तो बहुत मारा था इनने मेरे को, बहुत इलेक्ट्रिक शॉट दिया था और यस कराया था। बोले कि बोल तेरे पाकिस्तान में क्या रिलेशन है, तो सिम्मी का आदमी है। मैंने कहा सर देखो मैंने आज तक कभी भी देश के खिलाफ कोई काम नहीं करा, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, लेकिन मैं अपने एरिया तक ही सीमित हूँ। मैंने कभी तुम्हारे गुजरात में आके कोई क्राइम नहीं किया। तो बोले तू वहाँ पे मोड़ा साहब ने जहाँ पकड़ा है वहाँ पे तू तो सिम्मी के कॉन्टेक्ट में था। मैंने कहा नहीं सर मैंने आज तक कभी सिम्मी और इन लोग से कभी रिलेशन ही नहीं रखे और ना मैं आगे कभी फ्यूचर में रखूँगा। तो मैंने कहा सर मैंने देश के खिलाफ कोई काम नहीं करा, मैंने क्राइम करा लेकिन क्राइम भी मैंने अपने लेवल तक ही करा, मतलब अपने देशद्रोही का कोई केस नहीं करा। और ये सिल्वर मेरे को तुलसी ने बताया, क्योंकि तुलसी ने बताया इसलिए फेंक के तो तुलसी कटारे को जानता नहीं जानता था। तुलसी ने कटारे का नाम सुन के मुझे कटारे का नाम फॉरवर्ड करा, जबकि तुलसी को यही मालूम था कटारे है कौन। तो तुलसी को कहाँ से पता लगा? अच्छा वो दोनों की बातचीत थी पुलिस वालों की। हाँ, जोशी एंड जोशी और हाड़ा हाड़ा। इसको तो ये नाम भी मालूम था इनका, वो आदमी कैसे उसका नाम बिना बात के लेगा। तुलसी को ये मालूम नहीं कि यहाँ का होम मिनिस्टर है कटारिया, बोले कटारिया का नाम दे देते कि कटारिया को मजे होगी, कटारिया को पैसे खा ले सारे। The entire story of Sohrabuddin and Kausarbi fake encounter case would have been relegated to oblivion if Ruwabuddin had not raised his finger of objection. After Sohrabuddin's fake encounter, his elder brother Ruwabuddin wrote a letter to the Chief Justice of Supreme Court, based on which Supreme Court directed a police investigation into the matter. On the basis of a preliminary inquiry, Gujarat CID entered a charge sheet and named 13 police officers related to the case. In the meantime, Ruwabuddin filed a writ petition in the Supreme Court. Supreme Court then ordered a CBI inquiry into the case as well as ordered an investigation for the missing Kausarbi. Now listen to Ruwabuddin's account of how he was approached for a compromise several times, including an offer of a whopping 35 crore rupees. को पैसे की ऑफर आई? किसी पैसे की कंप्रोमाइज की मेरे कंप्रोमाइज की बहुत पहले आई थी, ये तो बहुत बार आई थी, तो साथ में आई थी। बाकी वो जुनून इस टाइप भरा कि मैंने बताया ना आपको। नहीं वो भी तो समझ में आना चाहिए ना, वो ऑफर नेताओं की तरफ से थी कि पुलिस वालों की तरफ से थी? देखो बताऊँ मैं, ये राशि बात है, ये किसी को बताना मत। नहीं ऊपर तो जाएगी, ऊपर तो मैं बात करूंगा ना। पुरुषोत्तम सोलंकी है ना, जो पुरुषोत्तम सोलंकी तो मंत्री है ना, वो उज्जैन भोपाल में गया था। भोपाल अपने मध्य प्रदेश में? हाँ, राजधानी में गया था। वहाँ से सीएम ने हमारे नजदीक नेता है जो ये ना, हाँ हमारे नजदीक नेता है जो हमारे करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जैसे कि बताऊँ आपको, जो विधायक रहा है वो 3 बार विधायक रहे हैं तहसील के। चलो मतलब वो पुरुषोत्तम सोलंकी ने आपके किसी खासम खास को कहा? पुरुषोत्तम सोलंकी ने माप जाके बोला किसी एमएलए को? नहीं, सीएम को बोला ना। सीएम जैसे शिवराज सिंह चौहान को बोला ना। इसने बोला कि मेरे भाई से जो पूर्व विधायक था पहले, उससे बात करते हैं। उसने सीएम ने दबाव वाली बात नहीं बोला कि मेरे पास ऐसी खबर आई है। तो जो हमारे साथ जिसने बोला नहीं, उसने बोला कि इन्होंने मार्च 25 मार्च की 2007 की बात करी थी हमसे। 25 मार्च मेरे ख्याल 25 फरवरी 2007 की बात होगी। उस टाइम बात करी थी कि इसको तुम अच्छा काम करवा देंगे किसी से का, और इसको तुम वापस ले लो इसको। शिवराज चौहान ने नहीं बोला, यहाँ के लोकल एमएलए ने? एमएलए जो था हमारा, जो पूर्व विधायक था, उसने बोला था। किसका, भाजपा का था? बीजेपी का। उसने बोला था कि तो आपके टच में था? मेरे पापा के टच में था। अच्छा, आप लोग बीजेपी सपोर्टर है? हाँ, क्या अब इससे जो अमित शाह की गिरफ्तारी हुई, उससे थोड़ी उन्होंने हमसे दूरी बना ली। उन्होंने वो समझ गए होंगे कि अब शायद आपके लड़ाई कर रहे हो। लड़ाई का बच्चा क्या है, हमारा तो ठीक था वो, और अमित शाह के बाद से भी RS एमएलए का नाम क्या है उसके जिसने बात की थी? लाल सिंह राणावत। कितने की ऑफर लेके आया था वो तो उस टाइम में उसने बोला था 35 करोड़ रुपये का बोला था। 35 करोड़ रुपया? हाँ, 16 लोग बंद थे ये। 16 लोग बंद थे ये। 2-2 सबसे करवा के ने 2-2 करोड़ सबसे करवा दिया। हाँ, 16 बंद हुए, मैंने अपना अंदाज निकाला मैंने। अच्छा, वो आपस में बांट करके मिल करके दे रहे होंगे? ऐसा अंदाज निकाला मैंने। ये डीएजी ने बोला मैं 5 दूंगा, तुम 2-2 दे देना, ऐसा करके अंदाज निकाला मैंने, अपना पर्सनल अंदाज निकाला मैंने। उसने बोला था कि गुस्सा हो जाएगा काम अपना, ये ऐसा।
हाँ, पापा ने बोला था कि मैं बच्चे जीत पे हैं यार कि मुश्किल हो पाएगा ये, बाकी मैं और बात करूंगा मैं, बाकी मुश्किल हो पाएगा। वालिद साहब का नाम क्या है? अनवरुद्दीन। Ruwabuddin says that his family was a BJP supporter for the longest time. His father, Anwaruddin, was made an offer of 35 crore rupees through the local MLA Lal Singh Ranamat, while the case was still with Gujarat police. It is a game of money played well and alike by police and political leaders. Now listen to Ruwabuddin exposing DIG DG Vanjara and DCP Abhay Chudasamma. यहाँ से लोकल में अगर चुनाव ना संबंध मामला भी कर सकता, कह रहे थे कि अभय चुड़ासमा ने भी आपको ऑफर भेजी थी? बातचीत भी हुई थी, बहुत देर तक हुई थी बात। फोन पे बात हुई थी, सीबीआई को नंबर उपलब्ध करवाए मैंने वाले। अभय के कितने पैसे बोल रहा था? 50 करोड़ उसने खुद ने बोला, 50 करोड़ रुपये का। बाद में सीबीआई ने 50 लाख लिखे वो। अब सीबीआई ने 50 लाख लिखे? हाँ, 50 लाख ही लिखे उसने, रकम बड़ी नहीं बताई, जानकर अल्लाह ने नहीं बताई इनने। और इसने बंजारा ने उस टाइम पे बंजारा की डायरेक्ट थी, खबर नहीं आई थी, अपने से खबर आई थी, एमएलए से। किसी के थ्रू आई थी? हाँ, उसके बाद बंजारा की जो गांव है नीलोल, उसकी रिश्तेदारी होशंगाबाद में है। होशंगाबाद बराबर। इसकी बंजारा की? सुनो, बंजारा गांव इलोल है। इलोल है ना? इलोल में वाले एक शख्स से इसकी स्टोरी, जिसकी रिश्तेदारी अच्छा होशंगाबाद में। होशंगाबाद वाली रिश्तेदारी कहाँ पर है? पास वाले गाँव में। अच्छा, उनके इस तरह से एक लिंक बन गया। इन्होंने भी कहा था, तो उन्होंने बोला यार ये वो लोग अजब किस्म के हैं, तो बात तो करना था, तुम्हारी क्या मर्जी है, तो कि बस पैसे दे के निपटारा कर दो कैसे भी। बंजारा ने बोला, बंजारा की रिश्तेदार ने बोला था, बंजारा ने बोला। तो बोला यार वो अजब किस्म के लोग हैं यार, वो जिद्दी मिजाजी लोग हैं, वो थोड़ी ना कर ना रहेगा वो, तो यार क्या। अमित शाह ने कितना दिया था? अमित शाह ने कहाँ दिया था? मतलब कितनी ऑफर? अमित शाह ने ऑफर कुछ भी नहीं करा अभी, धमकी दी थी। अमित शाह से उसके थ्रू धमकाया, वो सारी उसने मीडिया के थ्रू धमकाया था उस टाइम पे। नहीं, मीडिया तो अलग हो गया, कभी आमने सामने बात, कभी दाएं बाएं से। इसने चुड़ासमा ने बहुत बात हुई थी इसके बारे में, अमित शाह बारे में बात नहीं करी थी, ऐसा मुझे लगा कि उसके बारे में बात करता था मेरे से। अमित शाह ने फोन पे क्या बोला? इसने क्या नाम, चुड़ासमा ने एक बार फोन पे बोला मेरे से कि वो खुद कॉल करता था, आप करते थे? आजम था नहीं जो, आजम वो उदयपुर वाला, हाँ, दाढ़ी वाला। आजम ने मुझे फ़ोन लगाया, भाई मैं छूट के आ गया हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है। उसके थोड़े दिन बाद आजम का ने मुझे फ़ोन लगाया कि नहीं एसी साहब बात करना चाहते हैं। एसी? अभय चुड़ासमा। अच्छा, ऐसे करके बोलता है? एसी। अच्छा, ए साहब है एसी चुड़ासमा। तो एसी साहब। Chudasama calls Ruwabuddin to Ahmedabad and invokes his sympathetic relationship with Sohrabuddin. Clearly, the law enforcement agents are involved in a different game outside the court. For all the carrots offered, Ruwabuddin does not fall for DCP Chudasama's sweet talk. नंबर बात करी, बोले आओ अहमदाबाद आओ मिलो, आपको फ़ायदा होगा उसमें, आपका भाई मेरा दोस्त था, आपके भाई ने बात करी थी नहीं करी होगी शायद आपसे, और आप भाई कितना मेरे से ताल्लुकात थे, ये मैंने क्या कि अहमदाबाद आता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मतलब वो अभय चुड़ासमा का आदमी है? कौन? आजम था किस टाइम पे, फिर बाद में क्या होगी, जैसे अगर अपन रात दिन मिलेंगे तो आपको मिजाज समझ सकूंगा मैं, फोन पर समझ सकूंगा मैं। तो फिर क्या बोला चुड़ासमा ने आपको? चुड़ासमा ने बोला था कि मेरे साथ में आके ने गांधीनगर मिलो। गांधीनगर? अच्छा। हाँ, साथ में खाना खाएंगे, बैठेंगे, करेंगे अपन, तो आपको फायदा होगा इसमें। मैंने कभी बुरा नहीं सोचा आपका, आपको कभी बुरा नहीं सोचा, ठीक। आप तो कभी होता बता था कि मैं क्या था, आपको होता बता था मैं आपकी क्या बताऊँ आपको मैं, आप यहाँ मिलो। तो आपसे कभी यार आप अहमदाबाद में घुसे आप, बस आपको परेशानी नहीं आएगी। मैंने आता हूँ अहमदाबाद में, आता हूँ बराबर आता हूँ उनसे मिलने के लिए, इस टाइप से बातचीत करी थी उन्होंने। कभी धमकाया नहीं, उनकी जबान में कड़वास थी, देखो थोड़ा नाराज तो थे। हाँ, कड़वास थी। बातचीत का अंदाज ये था कि फ़ोन से अपन इसको इसी कड़वास जाहिर करो ताकि डर जाए ये, समझ रहे? बोलने का अंदाज जो था नहीं वो। कितनी बार बात हुई होगी? मेरे ख्याल से 3 बार बात हुई थी, एक बार नागदा हुई थी, 2 बार जिंदगी में बात हुई थी। तो हमेशा आजम ने करवाई? आजम ने करवाई हमेशा, उसने नंबर भी दिए थे मेरे को चुड़ासमा ने। अभी भी है नंबर वो? शायद होंगे, मैंने रखे नहीं थे, या हो नहीं, वो सिम कार्ड था जो, उस सिम में नंबर थे उसके। नहीं, पर्सनल नंबर है उसका कोई? पर्सनल नंबर था सी मेरे ख्याल से, देखो बताता हूँ आपको, मेरे भाई तो ये नंबर दिया था मेरे को उसने। वो नंबर भी चालू होगा शायद, पता नहीं।
मैं चेन लगातार नंबर से। आपकी आखिरी बात कब हुई फिर इससे? सितंबर में हुई थी बात मेरी, इसी साल सितंबर 9 में, लास्ट ईयर। हाँ। तब अरेस्ट हो गए थे? अरेस्ट नहीं हुए थे। तो आजम ने करवाई थी तब भी बात? नहीं सॉरी, सीबीआई की जांच से कुछ दिन पहले 10 जनवरी को जांच हुई सीबीआई की। हाँ 10 जनवरी हुई हो तो नहीं जांच हुई ना, तो मेरी सितंबर में हुई थी बात, सितंबर 9 में। Clearly, after the Supreme Court hearing, the sword of CBI investigation was hanging over the heads of these senior police officers. All kinds of tactics were employed by the malefactors to escape the law. Crores of rupees were being offered at times and at other times issued veiled threats. Rubabuddin and his younger brother, Nayabuddin, talk about a contract they had with Chudasama. According to their understanding, Chudasama promised to clear Nayabuddin from the popular firing case on the condition that Nayabuddin helps Chudasama stay out of the CBI inquiry. चुड़ासमा का बिहेव कैसा है तुम्हारे साथ? ठीक? मैं तो डायरेक्ट तो हूँ नहीं कोई, फिर भी ठीक है, वाया में है। हाँ। और इतना कुछ मैं इतना भरोसा तो करता नहीं हूँ। देखो, लेकिन खिलाफ जाना है उसके या नहीं जाना है? मैं खिलाफ जाऊँगा बिल्कुल। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको पॉपुलर केस है तो वही निकालेगा। तो अभी थोड़ी जाऊँगा। वक्त देख करके, मतलब वक्त देख के ना, अगर पलटी मारनी जरूरत पड़ी तो मारूंगा, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं मारूंगा। हाँ। मैंने ये नहीं कि उसके थ्रू में पैसा कमा लूं, पैसा मेरी जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके थ्रू पैसा ही कमाऊंगा मैं। केस से निकल जाऊंगा, मतलब मेरे को केस से निकलना है, शादी करनी है, समझ रहे नहीं? उसके बाद मेरे को फ्यूचर प्लान में, जैसे मैं अभी मेरी जो ताकत थी LLB करने की, तो इतना तो करूं कम से कम, वकालत तो करूं। Nayabuddin was also involved in the popular building house firing case, which is under the supervision of the Gujarat police. Tired of a life full of hide and seek, he wants to embark on a fresh start. However, with a criminal case hanging over his head, the dream of a fresh start is far from coming true. Chudasama strikes a deal with Nayabuddin. Chudasama will facilitate all charges against him provided Nayabuddin helps keep Chudasama out of CBI inquiry. नहीं, सीबीआई ने तुम्हें बोला था वहाँ पर कि चुड़ासमा के खिलाफ जाना है? क्या किया? जो अखबार में आया कि तुम हॉस्टाइल हो गए सीबीआई का, जो था विटनेस हॉस्टाइल हो गया। मामला ये है सीबीआई का कि सीबीआई ने जो मैंने बातें मुझसे मुकरा नहीं, मैंने नहीं लिखी थी। अच्छा, वो अपनी तरफ से उनका जो उन्होंने उनके हिसाब से बनाई थी। क्योंकि उससे तो तेरी चुड़ासमा से दुश्मनी हो जाएगी यार। वो तेरे को कैसे केस से निकालेगा? केस से निकाल नहीं पाएगा ना वो तेरे को। वो पॉपुलर केस में तो मदद चाहिए ना उसकी। पॉपुलर केस में है कुछ भी नहीं, लेकिन वारंट तो है नहीं। वारंट तो है ना। वो तो जिस दिन भी बोर्ड पे आएगा केस, तो बोर्ड पे तो आए नहीं। परेशान तो कर ही रहा है ना वो। 6 सालों को बोर्ड पे नहीं आया अभी तक, तो बोर्ड पे तो आएगी। उसमें अगर तेरे को मदद चाहिए तो वो चुड़ासमा कर सकता है। और चुड़ासमा से मदद अगर चाहिए तो तुम्हें उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, या कम से कम उसको दिखाना पड़ेगा कि हम तेरे साथ हैं। और अगर तुम खुल्लम खुल्ला सीबीआई के साथ चले गए फिर तो क्या होगा? ये क्या बोलता आपका दिमाग? मेरा दिमाग जो बोला वो करा मैंने, समझ रहे नहीं? मैंने किसी सलाह नहीं ली, मैंने मेरे को ये अच्छा लग रहा है ये करूँगा मैं। अरे तुम्हारे ऊपर केस ही नहीं खत्म होगा तो तुम क्या काम करोगे आगे? हाँ, केस ही खत्म नहीं कर पाओ, वाइट ही नहीं कर पाओ अभी तक। तो फिर क्या होगा ना? अब ये एग्रीमेंट कब हुआ था इससे, चुड़ासमा से? चुड़ासमा से क्या, ये जो अपना काफी टाइम हो गया उसका। तो उसने मदद के लिए बोल देता। हाँ, बात हो गई थी मदद। लेकिन उसने बोला था कि आप मेरे खिलाफ मत जाना। उसने भी तो कुछ मदद मांगी होगी ना? उसने यही बोला मेरे से, अपने तक ही रखना बात, कि ये लड़ाई जो है ना, ये पे तुम्हारी मेरी नहीं रही है। उसने बड़ी कसम भी खाई। कसम खाने में उसका आत्मविश्वास भी था, ऐसा नहीं कि हवा में खाता है नहीं कसम। एक जैसे आप बात कर रहे हैं, बात में वजन है। मैं अभी आपके उठ के जाने के बाद अगर बात में वजन नहीं हुआ तो फिर हमें बात करेंगे यार, बात में दम नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात में वजन दिखता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलेगा ना कुछ भी मान लेंगे। बात में वजन था उसका। तो कसम खाई उसने, फिर क्या बोला कि मैं मदद करूंगा, कि मैं तुम्हारा कभी भी नुकसान नहीं करूंगा। क्या तुम्हारा मैंने कभी नुकसान करा क्या? क्या? और जो गलती से नुकसान हो गया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नुकसान क्या हुआ, सोहराबुद्दीन के पास से कट्टा मिला था तो मैंने केस बनाया यार। क्या बोला फिर बाद में? एग्रीमेंट किस बात का था? क्या? बस ये है कि मेरे से फायदा ही होगा, तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा मैं। कि मतलब वो ये चाह रहा था कि आप सीबीआई में मेरे खिलाफ बयान मत दो। हाँ, चलो ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो अपनी बात हुई है वो तो मैं दूंगा, जबान पूरी करूंगा। मतलब नहीं,
मतलब तुम्हारे मेरे जो बात हुई, तुमने 50 लाख का ऑफर दिया था, आजम यहाँ आया था, तो आजम वहाँ लिखाएगा, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, ये झूठ नहीं बोलूंगा। तुमने 50 लाख का ऑफर दिया था मेरे को, मैंने ना बोल दिया था, अपने बात हुई थी, इस नंबर पे हुई थी, वो सब मैं बताऊंगा, वो नहीं छुपूंगा। उसके अलावा तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा मैं, आगे से नहीं दूंगा। अगर सीबीआई जैसे कोई झूठा लेके, अब वो सीबीआई ने लिख लिया तो झूठा, अच्छा, तो मैं झूठा पड़ा नहीं उसके सामने। बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं, 6 महीने से काफी टाइम हो गया। वही ना, दिल्ली में ना लोग कंफ्यूज थे, दिल्ली में कहने लगे यार वो हॉस्टाइल हो रहा है, सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो पता नहीं वो उनका नहीं हो गया, इनका तो नहीं हो गया। मैंने कहा देखिए, जाए बगैर हमें सच पता नहीं चलेगा, जब हम जाते हैं तो जबान पता लगता है। अरे उसने वो जो एग्रीमेंट जो मैंने दिया था बयान, वो उसको अमित शाह के इसने यूज नहीं करना था, उसको तेरी जमानत के लिए बयान यूज करना था, तो वो उसके एग्रीमेंट से फिर गया। वो कौन सा बयान था वो? कि ना मेरे को चुड़ात्मा ने धमकाया, ना कोई लालच दिया, ना सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने का बोला उसने। अच्छा, ये आपने अपने तरफ से बोल दिया उसको बचाने के लिए, लेकिन उसने अपनी जबान नहीं पूरी की, उसने बयान नहीं पूरी, उसने अमित शाह के उसमें नहीं लगाना था उसको उसने अमित शाह में लगा दिया। किसने लगाया, वकील ने या सीबीआई, किसने? मेरे साथ तो गलत करा थे ने, तुम्हारी जमानत के लिए कोशिश कर रहा था, मैं अमित शाह के लिए थोड़ी कर रहा था। Nayabuddin is extremely unhappy that Chudasama exploited the personal contract struck between Nayabuddin and Chudasama and used it to bail out Amit Shah. Once bitten, he is twice shy and will not trust Chudasama anymore. He will assess the situation and test Chudasama's commitment to his contract before giving his statement to the CBI. Right under the CBI's nose, here is another agenda brewing to mislead judicial process. We hope the CBI is paying close attention. According to Azam Khan's narrative of Sohrabuddin's fake encounter, some of the police officers who are privy to the intricate details of the case are still running scot-free. Before becoming a victim of fake encounter, his co-prisoner Tulsiram Prajapati had eavesdropped on the conversation between SHO Bhavan Singh Ghada and DSP Sushil Joshi of Rajasthan Police. Again, we hope the CBI is listening. This expose by reporter Pushp Sharma throws up several alarming and disturbing events that connect back to one single mastermind, and that is Amit Shah. Amit Shah is out on bail in Tulsiram Prajapati fake encounter case, but the matter is still sub judice in the Supreme Court of India. Amit Shah was granted bail based on an affidavit that he submitted that he will not influence any witness while on bail. However, the kingpin devises a brilliant mechanism to violate his bail condition while keeping himself invisible. He makes Gujarat Bhawan his physical den and engineers his rescue operations in 3 states through remote control, hatching a conspiracy while on bail to facilitate his own acquittal by subverting the judicial process. While the BJP leaders are busy saving their skin, their deputies in the capital are busy executing the orders of Amit Shah. The objective of this undercover investigation was to expose all the players in this game of political conspiracy, saving the former Home Minister of Gujarat. And somewhere in remote Ujjain, Narmada Prajapati is clueless about one political pot boiler that her fate is engulfed in. The big question is, will there be justice? Will the CBI open its eyes to the conspiracy of these political leaders executed right under its nose? Will the judiciary continue to be blind to the multiple layers of this sophisticated crime? Here is the evidence, and we, the people, are watching.